evening, good afternoon, good morning, namaskaram, namaskar, and vanakkam. Welcome to Bob's Radio 21.37 FM, and this is Bob with you, dear friends. Once again, welcome to another Motivational Mondays right here on Bob's Radio, and welcome to another Hindi broadcast of Bob's Radio. If you are tuning in for the first time, do look us up on YouTube, on Facebook, by simply typing in Bob's Radio 21.37 FM, and you will find all our previous segments there. If you'd like to get in touch with us, simply write to us on Bob's Radio 21.37 FM at gmail.com, or you can also WhatsApp us on +91 906 181 17307. I am so excited for today, and thank you so much for tuning in. It is such a joy to have all of you. I know it's been a tiring day. We've all had a weekend, and now we've come to the first day of the week. I'm sure most of you are tired by the end of this day. Some of you are listening to us the next day. Well, you'll only be starting your day. I hope your day would be great. I hope by the end of today, we'll all have a smile on our faces. Now, we have lots of segments coming up. We have a very, very special guest that I'll be introducing to you very shortly. But to talk more and to talk in Hindi, I have wonderful RJs with me in the virtual studio. Let me quickly go over to them. Hi, RJ Singh. Hello, Bob. Hello. Good evening to all my dear listeners. Good evening. कैसे चल रहे हैं? मैं बहुत ही अच्छा हूँ. आप कैसे हैं, बॉब? Going well, Singh Saab. It's been good to have you. Or I also have from UAE, Ajay Anuj. Good evening, Bob. How are you, Bob? I am doing good. Anuj bhai, कैसे चल रहा है UAE में? बस यूएई में यहाँ पे जैसे नॉर्मल गर्मी चल रहा है, बस दिन एक दिन निकाल रहे हैं. All right, good. Well, I also have a crossover RJ with me from our English language broadcast. Today I have RJ Liz with me. Hi, Liz. Hello, Bob. How are you doing? Good. Let me see if your Hindi is better than mine. कैसे चल रहा है? बस सब कुछ ठीक है. All right. Pass marks there. Singh Saab, we'll give pass marks, right? Yes. I'm sure you're busy with the IPL, right? I think there is something happening today. आज मेरी फेवरेट टीम खेल नहीं रही है, इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ IPL. या बिल्कुल ठीक नहीं है. अच्छा बोलिए, अभी इंडिया में what is the situation? How's the weather? Is it still very hot? हाँ, यहाँ पर अभी बहुत ही गर्मी है और मेरे इधर ऑलमोस्ट 42 डिग्री टेम्परेचर है. ओह, तो बहुत गर्मी है अभी भी इस तरफ. जी. So what do you do? I mean, बहुत लस्सी पीते हैं, क्या करते हो बहुत गर्मी में? I drink not lassi, but like lemon juice and ठंडा पानी is the is the very good thing, I think so. Best. The best, yeah. Okay, good. Well, I think Singh Saab, why not we are going to do a little bit different today, aren't we? Okay. From our usual segments. Yes. So usually we have some segments that we do, and then we bring in our special guests. But today we have a wonderful person joining us as our special guest, and we are going to bring him on air first, get to know him, and then we'll continue from there. Singh Saab, let's go into his introduction. Okay, Bob, let's go. All right. Here we have today with us evangelist Edwin Paul. He was born in Kerala but raised in Faridabad from when he was just 3 months old. आपकी प्रारंभिक शिक्षा फरीदाबाद में हुई और 1999 में आपने एशियन बिब्लिकल कॉलेज से थियोलॉजी में बैचलर की डिग्री प्राप्त की और फिर स्टुअर्ट्स बाइबल कॉलेज से 1 वर्ष का कोर्स पूरा किया. बाइबल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 2000 में आप स्थानीय कलीसिया में वापस आए और बीते 22 वर्षों से आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. He has also traveled to so many places. He's traveled to the UAE, Bahrain, and multiple times to the United States of America. बीते 22 सालों से विभिन्न सेवकाई में आप जुड़े हुए हैं, जैसे स्थानीय कलीसिया की सेवकाई, अनाथालय की सेवकाई, कुष्ठ पीड़ितों के बीच की सेवकाई, सुसमाचार की सेवकाई, म्यूजिक मिनिस्ट्री और जवानों के बीच सेवकाई.
And his mission statement says, reaching out to people with gospel through music. Let's bring evangelist Edwin Paul on air. Box Radio 21.37, keep bobbing along. Edwin Paul, welcome to Bob's Radio 21.37 FM. Thank you, Brother Bob, for inviting me. I'm so glad to be here with you all. We love to hear बड़ी from खुशी you. मुझे है कि हाँ. मैं आज आप लोग के बीच में आया हूं और आपने मुझे इनवाइट किया है इस प्रोग्राम के लिए. मुझे बड़ी खुशी और आनंद है. We are so happy, excited. You're a wonderful musician, wonderful singer. बहुत सारे बातें हमने अभी बोलने वाला है. We are just waiting to hear from you. But I just want to start with a song. So Bhaiya, can you sing for us your favorite song, and let's start with the song. एक गीत है जो मुझे बहुत ही पसंदीदा गीत है, जो मैं बहुत जगहों पे गाता हूँ. उसका बोल है, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना. वो गीत मैं आप लोग के सामने गा करके शुरुआत करना चाहता हूँ. राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना. यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना. संसार के अंत तक वो तेरे साथ है. राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना. यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना. संसार के अंत तक वो तेरे साथ है. आंधी आने दो याने दो तूफान. आंधी आने दो याने दो तूफान. वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु महान. राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना. यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना. संसार के अंत तक वो तेरे साथ है. दुख से भरी है जिंदगी
जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी है जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते, दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। ब्यूटीफुल सिंगिंग सिंह साहब। बहुत ही अच्छा एडविन भैया, आपने बहुत ही सुंदर गीत को गाया। और बहुत बहुत सच में धन्यवाद। इस जीवन के राह पर सच में बहुत कांटे हैं, पर अगर यीशु हमारे साथ है तो हम इस जीवन को बहुत ही अच्छे से गुजार पाएंगे। और सच में ये गीत हमें बहुत उत्साहित करता है, बहुत प्रेरित करता है। धन्यवाद ऐसे खूबसूरत गीत के लिए। Yes, absolutely. Thank you so much. Oh, we are going to go back and listen to more of Edwin Bhaiya and his story and his testimony. It's a wonderful journey and I would not want you to miss it. Dear listeners, dear friends, please do send us your feedback on the chat, on Facebook, on YouTube. We love to hear from you. And above all, we hope that today will be a wonderful day for you as we go through these segments. Now, on Bob's Radio, we always love to look around us, see what's happening around us. And I noticed yesterday was a special day. Liz, what did we celebrate yesterday? Yeah, yesterday was Mother's Day. Absolutely. Yesterday was Mother's Day, and I'm sure, some of you remembered, some of you have forgotten. If you have, do remember to call your moms and tell them that you love them because it's a very, very special day. Let me go to Anuj. Anuj bhai, tell me what comes to your mind, Mother's Day. बॉब, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो कल जो सेलिब्रेट किया गया था वो इंटरनेशनल मदर्स डे कहते हैं, और ये हर साल हर मई के महीने के हर दूसरे संडे पे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये ऑलमोस्ट 152 कंट्रीज़ में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। एंड आई वांट टू डेडिकेट, मेरे को एक पोएम हर माओं के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। Alright. कैन आई गो अहेड? Yes. हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ, कभी डांटती है तो हमें कभी गले लगा लेती है माँ। हमारी आँखों के आंसू अपने आंसू आँखों में समा लेती है माँ, अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ। हमारी खुशियों में शामिल होकर हमें गम भुला देती है माँ, जब भी कभी ठोकर लगे हमें याद आती है माँ। दुनिया की तपिश में हमें आंचल की शीतल छाया देती है माँ। खुद चाहे कितनी भी थकी हो हमें देखकर अपनी थकान भुला देती है माँ। प्यार भरे हाथों से हमारे थकान मिटा देती है माँ। बात जब भी हो लजीज खाने की तो याद हमें आती है माँ। रिश्तों को खूबसूरती से निभाना सिखाती है माँ, लफ्ज़ों में जिसे बयां नहीं किया जा सका ऐसी होती है माँ। वाह। बहुत ही खूब अनुज भाई, सुंदर कविता के लिए आपको धन्यवाद। सच में माँ का प्यार सबसे अलग होता है, और यह सच है कि एक बच्चे को माँ के प्यार की आवश्यकता होती है। और हम सब जानते हैं सच में माँ के प्यार की आवश्यकता हम सबको है, हम सबको होती है। बचपन में भी हमने माँ के प्यार को अनुभव किया है। एक माँ अपने गर्भ में बच्चे को संभाल कर रखती है और उसके जन्म लेने के बाद उसका हमेशा वह ध्यान रखती है। परंतु बाइबिल इस सच्चाई को बताती है। यशाया की पुस्तक उसका 49 अध्याय उसका 15वीं आयत में, वहाँ पर परमेश्वर कहता है, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये परमेश्वर का प्रेम है। एक
जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, हो सकता है शायद वो माँ हमें भूल सकती है, पर परमेश्वर अपने प्रेम को हमें बताता है कि परमेश्वर का प्रेम एक माँ से बढ़कर है, और परमेश्वर जिसने हमें अपने हाथों से रचा है वह हमें कभी भी नहीं भूल सकता। इसलिए तो वह हम पापी मनुष्यों को खोजने के लिए और हमें पाप से बचाने के लिए अपनी स्वर्गीय महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी में चला आया, और उसने हमसे माँ से बढ़कर प्रेम किया, हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, मृत्यु पर जयवंत होकर हमें पाप के दासत्व में से छुड़ा लिया। इसलिए यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 16 आयत इस प्रकार से कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और सच में हम जितने उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम जितने यदि उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, वो परमेश्वर हमारा उद्धार कर सकता है। ये परमेश्वर का प्रेम है, उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान को दे दिया। परमेश्वर का प्रेम माँ से बढ़कर है। Absolutely. Absolutely. Wonderful words. Liz? या बॉब, मदर्स डे से याद आया, कुछ ऐसा गाना प्ले करो जो हर एक माँ की प्यार और प्रभु यीशु मसीह के प्यार से जुड़े हो। All right, let's listen to this beautiful song and we'll come right back. कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा। वाओ बॉब, दैट वाज वो बहुत ही अच्छा गाना था। Beautiful song. आज का दिन मेरे को लगता है पूरा गाने के साथ भरा हुआ है। एडविन भैया, आपको मैं फिर से स्वागत करता हूँ, और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। Yeah. आज आपके साथ बहुत बातें करना है, आपसे काफ़ी गाने सुनने हैं। मेरा पहला आपके लिए एक सवाल है। Yeah. आप अपने बचपन के कुछ अनुभवों को हमें बताएं, विशेष रूपी जब आपके माता पिता दोनों 1975 में प्रभु की सेवकाई के लिए फरीदाबाद में आए थे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा एक मौका प्रभु ने दिया कि मैं अपनी गवाही को बता सकूं। मेरे बचपन की बात अगर कहे जाए, जैसे भाई आपने बताया कि मेरे माता पिता 1975 में केरला छोड़ के फरीदाबाद में आए, और जब यहाँ पर आए एक अनजान जगह पे आए, और जब रेलवे स्टेशन में उतरे थे तब उनके पास अपने घर में जाने के लिए पैसा नहीं था, तो सिर्फ 8 रुपए लेकर के स्टेशन में उतरे, लेकिन घर जाने के लिए रिक्शे के लिए 12 रुपए चाहिए था।
लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। जैसे अभी हमने गीतों में सुना कि वो परमेश्वर एक माँ की तरह, एक पिता की तरह वो हमें थामे रहता है। और मेरे माता पिता को भी परमेश्वर ने कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। उस समय से लेकर उस 8 रुपए से जब इस जगह पे हरियाणा में फरीदाबाद में जब आके उतरे, प्रभु ने उन्हें ले चला। और मेरे बचपन में मेरे पापा मम्मी हमें कहते थे कि काफ़ी कष्टों के साथ हमें पाला है। रोज मेरे पापा मम्मी आउटरीच के लिए जाते थे, दोनों साइकिल पे जाया करते थे और गीत गाया करते थे रोड साइड में खड़े होके। और जो बुकलेट्स बांट करके जो पैसा मिलता था वो ला करके फिर चावल वाला खरीद के हमें भोजन देते थे। तो हमारा बचपन बड़े ही चुनौती भरे से हम लोग पले बड़े हैं। और लेकिन कभी भी मेरे माता पिता ये नहीं सोचे कि इन सब को छोड़ के केरला वापस चला जाए। उन कष्टों से गुजरते हुए वो लोग सेवकाई को आगे बढ़ाए, और वही प्रेरणा उन्हें हमें भी बचपन से दिया। उस परमेश्वर के प्रेम में हमें बढ़ाया और हमें सिखाया, और हमें परमेश्वर के वचनों को सिखाया हमें बचपन से। और मेरे मम्मी और पापा ने हमेशा ये चाहा कि मैं प्रभु की सेवा करूं, और उसी प्रकार से उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया। मेरे बचपन से मुझे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट खरीद के दिए और मुझे बजाने की अनुमति दिया, और मुझे कई जगह पे लेके जाते थे, और इस प्रकार से मेरा बचपन मैं बिताया। और बहुत ही सुंदर गवाही है आपके माता और पिता की। सच में परमेश्वर ने उन्हें किस रीति से अपनी सेवा में लाया और उन्हें इस्तेमाल किया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। एडविन भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बताया था कि अपने बचपन में आप अपने पिता जी से काफ़ी प्रेरित थे, और परंतु बड़े होने के बाद आपने अपना निर्णय बदल दिया। क्या आप बता सकते हैं कि किस कारण आपने फिर सेवकाई में आने का निर्णय लिया? ये बिल्कुल सही बात आपने कहा कि बचपन से वो एक आग्रह था कि प्रभु की सेवा करना है। लेकिन जैसे ही मैं बड़ा होता गया वो इच्छा मेरे जीवन से हटता गया। कारण एक बात मैंने देखा कि मेरे पापा और मम्मी के जीवन में बहुत कष्टों को मैंने देखा। मैंने कई बार देखा उनके आंखों में आंसू आते हुए। तो मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं प्रभु की सेवा करूं। लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में बहुत अलग थी। मैं दूर भागता गया, लेकिन प्रभु ने मुझे कभी छोड़ा नहीं। एक दिन जब मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ रहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय और उसके 16वीं आयत ने मुझे मेरे हृदय को छुआ। जैसे भाई अभी आपने मेरे से पूछा क्या कारण है, परमेश्वर के वचन ने मेरे से बात की, और वहां इस प्रकार लिखा है यूहन्ना 15 और उसके 16वीं आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। ये बात मेरे हृदय को बहुत छुआ, और मुझे स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने मेरे से बात की और कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना है। परमेश्वर की बुलाहट मैंने इस वचन के द्वारा अपने हृदय में पाया। परमेश्वर ने मुझे कहा कि एडविन, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अपनी सेवकाई के लिए चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर के फल ले आओ। मैं जानने लगा, मैं समझने लगा जो वरदान प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है, वो वरदान प्रभु चाहता है कि उसके द्वारा मैं जाकर के फल ले आऊं प्रभु के लिए। और मैं समझने लगा कि प्रभु ने मुझे चुना है और ये वरदान मुझे दिया है ताकि मैं उसके लिए फल लाऊं, ताकि मैं बहुतों को प्रभु में लेके आ सकूं। यही मेरा एक जीवन का सबसे बड़ा एक मोड़ था, जब परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात की और कहा कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुमको चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल ले आओ। ये वचन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एक निर्णय लेने के लिए प्रभु ने सहायता किया। परमेश्वर की बुलाहट को मैंने अपने जीवन में सुना।
प्रेज गॉड। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए आपको चुना, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है जो, और मैं ये सोचता हूँ सच में ये आपके माता पिता की प्रार्थनाओं का भी जवाब है कि आपके माता पिता ने आपके लिए ज़रूर प्रार्थना की होगी, मैं विश्वास करता हूँ। और आज आप अपने जीवन में उनकी प्रार्थनाओं के जवाब को आप आज अपने जीवन में देख सक रहे हैं। और सच यस, में बिल्कुल बिल्कुल, सच मैं भी में समझता हूँ कि ये उनकी प्रार्थना को, जी उनकी प्रार्थना का फल आज मैं अपने जीवन में देखता हूँ। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऐसे माँ बाप के लिए, और थैंक यू परमेश्वर, सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। एडविन भैया, क्या आप हमारे लिए एक और गीत को हमारे लिए गाएंगे? मैं चाहता हूँ आप उस गीत के बोल को हमसे शेयर करें, और आप जिस गीत को गाना चाह रहे हैं, आपने उस गीत को क्यों चुना गाने के लिए, वो भी हम हमारे श्रोतागणों को हम चाहते हैं कि वे जानें। जैसे भाई आपने उस वचन को पढ़ा था यूहन्ना 3:16 का, और जी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में आपने कहा कि वो हम, और हमने उस बात को भी देखा कि वो प्रभु जो मुझे और आपको अपने बेटे समान प्रेम रखता है और हमें कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। जब उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे परमेश्वर का वचन मुझे ये याद दिलाता है कि मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर भी प्रभु ने मुझसे इतना क्यों प्रेम किया है। मैं इस बात को हमेशा जब सोचता हूं तो मुझे एक ही जवाब आता है कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम रखता है, वो लाखों में श्रेष्ठ है। वो मुझे ढूंढते हुए इस संसार में उतर के आया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा छोड़ के इस धरती पर आया और अपने आप को मेरे लिए काल्वरी क्रूस पर जान दे दिया। जी प्यारे भाई और बहनों जो मुझे सुन रहे हैं, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि वो प्रभु यीशु मसीह लाखों में श्रेष्ठ है, वो लाखों में खूबसूरत प्रभु यीशु मसीह है। और उसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं आइजिया नबी की किताब 53 अध्याय के 2 पद में कि जब हम उसे क्रूस पर लटकते हुए देखें तो उसके अंदर कोई खूबसूरती ना थी, कोई ऐसा खूबसूरती नहीं रही, क्योंकि उसका पूरा शरीर लहूलुहान कर दिया गया मेरे गुनाहों के खातिर, हम सबों के गुनाह के खातिर। मैं वो गीत को गाना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आया, मुझे खोजने आया, मुझे बचाने आया और मुझे बचाने के लिए अपना प्राण को दे दिया। उस बात को सोचते हुए मैं इस गीत को गाता हूं। लाखों में मेरा वह प्रिय, एक ही मेरा प्रिय, उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया है। उसने मुझे इतना प्रेम किया कि उस प्रेम से उसने मुझे खरीद लिया है। उस गीत को मैं गाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इस गीत का आनंद उठाएंगे। परमेश्वर इस गीतों के द्वारा हमें आशीष दे। लाखों में मेरा वो प्रिया, एक ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा वो प्रिय, एक ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा वो प्रिय, एक ही मेरा प्रिय है। उसने मेरे मन को लिया है, प्रेम के बल से लिया है। उसने मेरे मन को लिया है, प्रेम के बल से लिया है। लाखों में मेरा वह प्रिया, एक ही मेरा प्रिय है।
बचाने को, मुझ पाया जान बचाया। यीशु प्रियतम मेरा हो, मुझ पाया जान बचाया। यीशु प्रियतम मेरा हो, लाखों में मेरा वो प्रिया, एक ही मेरा प्रिय है। प्रभु मन छोड़ दिया, बस अब सब कुछ तेरा हो। प्रिया प्रभु मन छोड़ दिया, बस अब सब कुछ तेरा हो। तन और मन तुझे दिया, यीशु प्रियतम मेरा हो। तन और मन तुझे दिया, यीशु प्रियतम मेरा हो। लाखों में मेरा वो प्रिया, एक ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा वो प्रिया, एक ही मेरा प्रिय है। उसने मेरे मन को लिया है, प्रेम के बल से लिया है। उसने मेरे मन को लिया है, प्रेम के बल से लिया है। लाखों में मेरा वो प्रिया, एक ही मेरा प्रिय है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एडविन भैया। सच में लाखों में परमेश्वर मेरा एक ही मित्र है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है, क्योंकि उसने मेरे लिए अपनी जान को दिया है, क्योंकि उसने मृत्यु को हराया है और मृत्यु को हराकर उसने मुझे पाप के दासत्व से छुड़ा लिया है। सच में इसलिए परमेश्वर मेरा एक मित्र है, वो मेरे दिल के करीब है और परमेश्वर ही प्रेम है। एडविन भैया, मैं विश्वास करता हूँ आपका परिवार भी आपके साथ ज़रूर बैठकर आपके इस रेडियो प्रोग्राम को सुन रहा होगा। क्या आप अपने परिवार के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? जरूर जरूर। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे एक अच्छा परिवार दिया है। और मेरे माता पिता, जैसे मैंने बताया कि वो सेवकाई में 1975 में यहाँ पर आए थे। मेरे जी फादर का नाम है इवेंजलिस्ट वीपी पाउलुस और मेरी मम्मी का नाम मौली पाउलुस। 2011 में मेरी मम्मी जो है प्रभु के पास चली गई हैं और 2006 में मेरी शादी हुआ। मेरी शादी रेस्टीना के साथ हुआ और 2007 में प्रभु ने एक बेटा दिया, उसका नाम केनेथ है। और 2012 में प्रभु ने एक और बेटा दिया, उसका नाम कैस्टिन है। और केनेथ अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है और कैस्टिन अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है। और हम मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं और हम लोग परिवार के साथ मिल करके परमेश्वर की सेवकाई यहाँ पर फरीदाबाद में कर रहे हैं। रोमियो के पत्री 8:28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग उससे प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए करता है। भैया, बीते सालों में क्या आपने संघर्षों का सामना किया? किस प्रकार आपने उन दर्द भरे समय का सामना किया? क्या आपने कभी परमेश्वर से पूछा कि ये सब क्यों मेरे जीवन में हो रहा है? प्रिय बहन, सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया। संघर्ष तो सबके जीवन में है। अगर मैं कहूँ मेरे जीवन में है तो था जरूर। 2009 की बात है, जब मेरा बेटा जब 1.5 साल का था, बड़े वाला, वो बीमार हो गया, उसको नेफ्रोटिक की बीमारी हुई
और उस समय मैं और मेरी पत्नी हम बहुत ही दुख के समय से हम लोग गुजरे। और मैं शब्दों में बता नहीं पाऊंगा कि कितना हम दुखी थे, क्योंकि उस समय में 2008, 2009, 2010 उन समयों में था कि हम लोग फाइनेंशियली बहुत ही कठिन समयों से गुजर रहे थे। तभी मेरा बड़ा बेटा भी बीमार हो गया और उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी हुई, जहाँ पर दोनों गुर्दे काम करना छोड़ दिया था और काफी बुरा हाल था उसका। और वो एक समय था कि जब वो बीमार हुआ, उसके बाद 2009 में मैं बीमार हुआ और काफी संघर्षों से हमें आगे हम बढ़ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में मैंने और मेरी पत्नी ने हमारे पारिवारिक प्रार्थनाओं में हम लोग जब हम बैठते थे और जब हम बात करते थे, हम एक बात को हमेशा ये कहते थे कि हे परमेश्वर, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ हमारे भलाई के लिए हो रहा है। हमने कभी भी परमेश्वर से इस बात को कंप्लेन नहीं किया कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। और कई बार हम आईसीयू में खड़े रहे, हम बाहर आईसीयू के बाहर हम सोए। जब मेरा बेटा एडमिट हुआ, हर 2 महीने में, हर 1 डेढ़ महीने में उसको बीमारी बढ़ जाती थी और हमें लेके भागना पड़ता था। लेकिन कभी भी हमने परमेश्वर से कभी सवाल नहीं किया, कभी हमने प्रभु से ये नहीं कहा कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, बल्कि हम इस बात को ठान में रहे कि प्रभु इन सभी बातों को सहन करने की शक्ति हमें दे। इस सारे जो परिस्थिति जो हमारे चारों ओर हो रहा है, उससे उससे बाहर निकलने के लिए हमें शक्ति दे। यही हमारी प्रार्थना हमेशा होया करता था और प्रभु ने हमें उसके लिए बल और शक्ति भी दिया। और मैं कई बार कई भाइयों से जब बातचीत होता था उस समय के दौरान में, कई भाई मुझे कहते थे कि एडविन, तू एक हॉस्पिटल मिनिस्ट्री क्यों नहीं शुरू कर लेता, क्योंकि हर 2 महीने में हम लोग हॉस्पिटल में चले जाते थे बेटे को एडमिट करके, और कई बार डॉक्टर के पास जाना ये लगा रहता था। बट उन दिनों में भी हमने कभी भी परमेश्वर से कभी ये नहीं सवाल पूछा कि क्यों ऐसा हुआ है, बल्कि हमने हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु जो कुछ भी है ये तेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है। और प्रभु ने हमें उस सारे परिस्थितियों में, उस चुनौतियों को बढ़ने के लिए, उसको सामना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। और आज जब मैं देखता हूं पीछे मुड़ करके 10-12 साल पुरानी दिनों को जब सोचता हूं, प्रभु ने आज हमें बहुत ही एक अनुग्रह का जीवन दिया है। आज मेरा बेटा पूरी तरह से चंगाई हुआ है। अभी 3 साल हो गया, वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, पूरी तरह से चंगाई उसे मिला है। और आज वो प्रभु के लिए गीत भी गाता है और प्रभु के लिए वो अपने शब्दों को, अपनी आवाजों को वो इस्तेमाल करता है, और ये बड़ी खुशी और आनंद की बात है। Praise God, praise God. Bhaiya, I think we really need to hear him sing. So I would request you to ask Kenneth to sing a song. But before that, I also like to call out some of our comments. We're getting some comments on our live pages. We have a request from Jesse Vardraj asking, can you please sing Teri Stuti Prashansa Ho? But before we take that request, Edwin Bhaiya, can you please ask Kenneth to sing a song for us? जरूर जरूर। केनेथ वो भी रेडी है गीत गाने के लिए, और जो गीत वो गा रहा है उसका बोल इस प्रकार है कि तन्हा जिंदगी पल पल घुट रहा हूँ, जीने की कोई चाह नहीं, चाह नहीं। और एक ऐसा एक जीवन जहां पर एक एक व्यक्ति बिल्कुल ही अपना आशा खो बैठता है, तभी प्रभु कहता है कि तू क्यों डर रहा है, पास आ जा, मेरे पास आ, मैं तुझे आशा दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। यीशु आ, मेरे आ, मेरी दुआ को सुन ले प्रभु। और वो प्रार्थना को वो व्यक्ति जब करता है,
वो प्रभु सुनता है और उसे उसके जीवन में आशा देता है। तो केनेथ वो गीत गाना चाहेगा जिसका बोल है, सुन ले मेरी दुआ। सबको जय मसीह की, गुड आफ्टरनून, प्रेज लॉर्ड एंड गुड इवनिंग। टुडे आई एम गोइंग टू सिंग अ हिंदी सॉन्ग। जैसे डैडी ने बताया, तन्हा जिंदगी पल पल घुट रहा हूँ। तन्हा जिंदगी पल पल घुट रहा हूँ, जीने की कोई चाह नहीं दे बहुत हुई। अब मैं जीऊँ कैसे, टूटा हूँ अभी, कोई राह नहीं, तन्हा जिंदगी पल पल घुट रहा हूँ, जीने की कोई चाह नहीं दे बहुत हुई। अब मैं जीऊँ कैसे, टूटा हूँ अभी, कोई राह नहीं, क्या कोई है जिससे मेरी फिक्र, क्या कोई है जो समझे मेरा दर्द, क्या कोई है जिससे मेरी फिक्र, क्या कोई है जो समझे मेरा दर्द। यीशु आता हूँ टूटे दिल को लेके, त्रास तुझसे ही, बाकी दुनिया की फिक्र अब मुझको नहीं है, मेरे लिए तू यीशु काफी पास आता हूँ, टूटे दिल को लेके आस तुझसे ही, बाकी दुनिया की फिक्र अब मुझको नहीं है, मेरे लिए तू काफी क्या कोई है जिससे मेरी फिक्र, क्या कोई है जो समझे मेरा दर्द, क्या कोई है जिससे मेरी फिक्र, क्या कोई है जो समझे मेरा दर्द। मुझ में और बाकी ना थी, नकली जमाने की हिदायतें काफी ना थी, परछाई डर की चारों ओर घेरे मुझे, खुद के गुनाहों से मिली मुझे माफी ना थी, तू मिला जैसे भटके को किनारा जैसे, अंधे को आंखें और लंगड़े को सहारा जैसे, पिता की गोद में एक रोता हुआ बेटा, लॉर्ड आया घर जो खोया था आवारा, जो भी चाहा मैंने अब तक मुझे मिल नहीं पाया, किया था जो भी हासिल मैंने सब कुछ गवाया, दिल लगाने से लगता है डर मुझे, यीशु तेरी जैसा कोई समझ नहीं पाया, बस अब तुझ में उम्मीद, तुझ में ही विश्वास है, तुझ में ही जिंदा, तू ही मेरी सांस है, जुदा होके तुझसे ना रह पाऊंगा, यीशु तू ही मेरी जीने की
वाओ, सच में मैं अपना फीलिंग बताना चाहता हूँ, मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो चुके हैं। थैंक यू, जैसा थैंक बाप वैसा बेटा। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कैनथ कि आज हमने पहले बात किया, उसका गला ठीक नहीं था, फिर भी उसने इतने ब्यूटीफुली गाना गाया। कैनथ, परमेश्वर आपको आशीषें दे, आपको आपको आपकी जो टैलेंट है उसको परमेश्वर के महिमा के लिए और इस्तेमाल करने के लिए आपको मदद करे। थैंक यू भैया, थैंक यू। एडविन भैया, एक रिक्वेस्ट आया था, तेरी स्तुति Yes. प्रशंसा हो, बाय जसी वरदराज, आप उसको गाना चाहेंगे? या जस्ट उसका नोट मैं देख रहा हूँ क्योंकि सडनली बताया है। एक स्टैंजा में गा सकता हूँ। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तू अवर्णनीय है। शायद वो वाला गीत है क्या? Ah, that's the one. ओके ओके, That's the one. आई विल सिंग। Dedicated to Jesse Vardharaj. ओके, थैंक यू, आई विल डू दैट। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। थैंक यू, Wow, amazing. Awesome. बिना Thank कोई you. प्रिपरेशन के, without any preparation, हाँ? कैसे गाया एकदम आपने? गाया तो पता नहीं करेक्ट स्केल में गाया नहीं, पता नहीं नहीं नहीं, मैं। करेक्ट स्केल था, स्केल भी करेक्ट था, और वो पिचिंग भी करेक्ट था, और थैंक सॉन्ग यू, ट्यून थैंक भी यू, बहुत अच्छा था। एक्सीलेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच धन्यवाद। एडविन भैया। एडविन भैया, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यस, आप और भाभी परमेश्वर के कई सेवकाइयों में व्यस्त हैं। किन किन सेवकाइयों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है? और उसके अलावा एक और सवाल जो मेरे दिल में है, क्योंकि आपकी गवाही से मेरे को समझ आया कि आपके माँ के गुजर जाने के बाद Yeah. आपके ज़िंदगी में एक नया बदलाव आया था। वो Yeah. क्यों था, वो भी आप थोड़ा शेयर करेंगे? हाँ, सेवकाई के विषय में कहें, प्रभु ने अभी तक हमारे को सेवकाई में इस्तेमाल किया है, और एक कलीसिया प्रभु ने हमें दी है, जबकि ये मेरा मात्र कलीसिया है, मेरा स्थानीय कलीसिया है, और मेरा मदर असेंबली है, जहाँ से मैं पला बड़ा, और यहाँ पर मैं प्रभु के सेवकाई में हूँ। और मेरी शादी होने के बाद मेरी पत्नी के हृदय में बहुत इच्छा थी कि वो भी फुल टाइम सेवकाई के लिए आए,
जब मैं शादी किया उस समय मेरी पत्नी नौकरी करती थी, और 2006 से लेकर 2010 तक मेरी पत्नी ने नौकरी किया। मेरी गवाही मैं चंद शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये हर किसी के लिए नहीं हो सकता, बट मेरे जीवन में जो अनुभव किया मैं वो मैं बता रहा हूँ कि जो 4 साल मेरी पत्नी ने जो नौकरी किया और जो वो पैसा सैलरी लेके आती थी, वो एक अ, वो एक किसी काम का नहीं था। अगर मैं कहूँ साधारण शब्द में, वो पैसा एक ऐसा थाली में हम डालते थे जिसमें छेद हो, क्योंकि मेरी पत्नी नौकरी के करने के बावजूद भी हमारे जीवन में बहुत तंगियां थी, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था। हमारे परिवार में कई प्रभु के दास लोग आकर के मुझे और मेरी पत्नी को बोला कि एडविन, तू तो एक सेवक है, एक इवेंजलिस्ट है, तो तेरी पत्नी को नौकरी नहीं करना चाहिए। तभी मेरे मन में एकदम एकदम एक नेगेटिव विचार आने लगता था कि अरे, ऐसे क्यों इन्होंने ऐसे बोला, क्योंकि मेरे जीवन में कोई भी प्रकार का सपोर्ट कोई भी फंडिंग एजेंसी से नहीं था, और जो भी मेरी पत्नी नौकरी करती थी उसके सैलरी से हम अपने महीने के गुजारा करते थे। तब जब कोई आकर के इस बात को कहते थे कि नहीं, तुम्हारी पत्नी नौकरी नहीं करना, तो मन में एक बहुत बड़ा एक सवाल उठता था कि ऐसे क्यों ये कह रहे हैं। मेरे बेटे की इलाज के लिए खर्चा है, मैं बीमार हो गया, मेरे को भी कई प्रकार के शारीरिक तकलीफ हुआ, और उसके खर्चे भी हैं, घर का खर्चा है, किराया देना है, बहुत कुछ है। तो ये सब कुछ देखते हुए मेरे मन में हमेशा सवाल उठता था कि ये लोग ऐसे क्यों बोल के जाते हैं कि एडविन, तेरी पत्नी को नौकरी छोड़ना है और तेरे साथ फुल टाइम सेवकाई में रहना है। तो गलत विचार शैतान कई बार मेरे मन में डालता था, लेकिन इस बात को हम समझने के लिए हमें 4 साल से ज्यादा लगा कि क्यों प्रभु के लोग आकर के हमारे को इस बात को कहते थे। हमारे बीच में कई बड़े प्रचारक हैं जो कई बार दिल्ली में आए, फरीदाबाद हमारे घर में भी आए, और जब हमारे से बातचीत करते थे तो मेरे को कई अनुभवी दासों ने, प्रभु के दास लोगों ने मुझसे इस बात को कहा, लेकिन मैंने उनकी बातों को ठुकरा करके मैं उस बात को नेगेटिव ले लिया करता था। लेकिन इस बात को समझने के लिए प्रभु ने मुझे 4 साल लगाए। 2006 में मेरी शादी हुई। 2010 दिसंबर में मेरी मम्मी ने हमसे, मुझे और मेरी पत्नी से कहा कि एडविन, क्यों ना हम एक बच्चों की सेवा यहाँ पर शुरू करें। तुम लोग को बच्चों के बीच में सेवा करने की बड़ी इच्छा है, तुमने बताया है, क्यों ना एक चिल्ड्रंस होम तुम लोग यहाँ शुरू करो फरीदाबाद में। तो मम्मी की ये बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा 1981 से लेप्रोसी कॉलोनी में विजिट करते थे। फरीदाबाद के पहला लेप्रोसी कॉलोनी है जहाँ पर मेरे पापा जाया करते थे। वहां पर उस समय बहुत बुरा हाल था उस कॉलोनी का, बहुत बदबू और बहुत ही अनटाइडी एरिया, और वहां जाके बैठना भी बड़ा मुश्किल था। ऐसे संदर्भ में मेरे पिताजी वहां पर जाया करते थे, मेरे मम्मी पापा जाया करते थे, और जब मैं भी बड़ा हुआ तो मेरे पापा मुझे भी साथ ले जाया करते थे कि ताकि मैं हारमोनियम बजाऊं और गीत गाऊं। वहां पर हर संडे शाम को हम लोग प्रेयर मीटिंग करने के लिए लेप्रोसी कॉलोनी जाया करते थे। तो फरीदाबाद से हमने शुरू किया, उसके बाद दिल्ली में 2 जगह पे हम जाते थे, एक लाजपत नगर में और एक आर.के. पुरम नाम का जगह है। दोनों लेप्रोसी कॉलोनी में हम जाने लगे। फिर गुड़गांव में भी एक लेप्रोसी कॉलोनी, वहां भी हम जाने लगे। तो ऐसे ये 4 लेप्रोसी कॉलोनी में हम लोग जाया करते थे, और पापा मुझे भी ले जाया करते थे। तब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तब मैं अकॉर्डियन भी बजाने लगा, और मैं वहां जाके गीत गाया करता था और पापा प्रचार करते थे। तो जब हम इस लेप्रोसी कॉलोनी में जाते थे, तभी वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे हम देखा करते थे, वो लोग हमसे कहते थे कि हमारे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन आप दे दीजिए, और इनको यहाँ से लेके जाइए प्लीज, इनके जीवन में एक अच्छा एजुकेशन इन्हें मिले ताकि इनका जीवन बदल जाए। यहाँ पर रहेंगे, मिट्टी में खेलेंगे, कहीं इनको एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि लेप्रोसी पेशेंट के बच्चे हैं सोच के कोई एडमिशन नहीं देता। तो ये बात
लेपर्सी लोग मेरे पापा मम्मी को बताया करते थे। तो मेरी मम्मी की बड़ी इच्छा थी कि ऐसे एक बच्चों की सेवा शुरू करें। और रस्टीना शादी से पहले भी वो जिस असेंबली में थी, चर्च में थी, वहाँ पर संडे स्कूल टीचर थी और वो बच्चों के बीच में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ करती थी। तो रस्टीना का भी बहुत इच्छा थी और मेरे से कहती भी थी, क्यों ना हम एक बच्चों के बीच में एक सेवकाई शुरू करें और एक चिल्ड्रंस होम शुरू करें। तो ये उस दौरान था, 2010 दिसंबर में मेरी मम्मी ने इस बात को हमसे कहा और उसके बाद वो केरला में ट्रीटमेंट के लिए गई। और 2010 दिसंबर के बाद 2011 जनवरी 15 तारीख को मेरी मम्मी प्रभु के पास चली गई। और वो एक बहुत बड़ा एक एक शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि मम्मी बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ से गई थी, वहां पर जाके जो ट्रीटमेंट उन्हें मिला वो ठीक नहीं मिला, उसके कारण उनके साथ ऐसे हुआ। लेकिन प्रभु की योजना थी और प्रभु ने अपने समय पे उन्हें अपने पास बुला लिया। तो जब मेरी मम्मी की देहांत हुआ और जनवरी 15 तारीख को जब हमें खबर मिली केरला से कि मम्मी नहीं रही, तो रेस्टीना उस दिन ड्यूटी के लिए गई हुई थी। तो वो था एक लास्ट डे जब मेरी पत्नी नौकरी पे गई। वो वहां से वापस आई, फिर हम लोग केरला गए, मम्मी का बॉडी फरीदाबाद लेके आए, यहाँ पर हमने फ्यूनरल किया। और उसके बाद फ्यूनरल होने के बाद मैं और रेस्टीना, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक सवाल आया, अब क्या करें। हम लोग प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना किया। जनवरी के बाद फरवरी 1 तारीख आया, तभी ऑफिस से कॉल आया कि कब ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन हम 15 दिन से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि अब क्या करना है, क्योंकि फरीदाबाद की कलीसिया, वो यहाँ के भाई लोग भी मुझे कह रहे थे कि अब जिम्मेवारी बहुत है आपके ऊपर, और पापा को देखना है, घर को देखना है, कलीसिया को देखना है, तो आप दोनों मिल करके इस बात को जिम्मेवारी लेके करना है। तो हमने एक डिसीजन लिया कि रस्टीना अब नौकरी पे नहीं जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, वो एक डिसीजन जो हमने अपने जीवन में लिया, वो लेने के लिए हमें 4 साल लगे। कई लोग हमारे को आके बोलते थे कि मेरी पत्नी के बारे में बोलते थे कि नौकरी छोड़ना है और दोनों मिल करके प्रभु की सेवा करना है, लेकिन वो निर्णय लेने के लिए हमें 4 साल लगे। और जब मेरी पत्नी ने नौकरी छोड़ा, प्रभु अलग अलग रास्ताएं खोलने लगा, अलग अलग रास्ते दरवाजे खोलने लगा। जो रास्ताएं बंद थी क्योंकि मेरी पत्नी काम करती थी, और जब उसने नौकरी छोड़ा, प्रभु ने रास्ता खोलने लगा। इसका जो मैं बोल रहा हूं कि प्रभु मुझे और अधिक तौर से इस्तेमाल करने लगा। मुझे गीत गाने के लिए और वचन की सेवकाई के लिए कई जगह पे मुझे इनविटेशन मिलने लगा। प्रभु और भी रास्ते खोलने लगे। मैं बहुत नॉर्थ इंडिया के कई स्टेटों में मैं सेवकाई में मुझे न्योता मिलने लगा और मैं जाने लगा। और मेरी पत्नी घर पे और घर पे रह करके मेरे लिए प्रार्थना करना और मेरी सेवकाई में हाथ बढ़ाती रही। ये एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था हमारा। मेरी मम्मी के मरने के बाद जो निर्णय हमने परिवार के तौर से लिया, वो एक जीवन का एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट, जहां पर परमेश्वर ने अपनी अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन के द्वारा करने लगा। यस जी। इससे पहले कि मैं आपसे अगले सवाल को पूछूं एडविन भैया, ये कमेंट फेसबुक कमेंट है अनामा सैमुअल की ओर से कैनेथ के लिए है ये। और अगर कैनेथ सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। भाई कैनेथ, आपके लिए इन्होंने लिखा है कि सिंग फॉर द लॉर्ड ऑल थ्रू योर लाइफ। सच में आप परमेश्वर के लिए हमेशा अपने जीवन भर आप गाते रहें और परमेश्वर अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए आपको निरंतर ऐसा ही इस्तेमाल करता रहे। एडविन भैया, आपने जैसे अभी लेप्रेसी मिनिस्ट्री के विषय में आपने हमसे शेयर किया, तो कोढ़ी लोगों के बच्चों को पालने के लिए या जो लेपर्स लोग होते हैं उनके बच्चों को पालने के लिए मैं सोचता हूँ एक करेज या साहस की आवश्यकता हुई होगी आपको। और क्या लोगों ने आपका विरोध नहीं किया, या आपने समाज की बाधाओं का सामना किया, या
कोई डर आपके सामने आया, आपने उन इन सारी बातों का आपने सामना किस प्रकार किया, आप हमें ज़रा बताएं। ये मेरे मम्मी और पापा की बहुत बड़ा एक प्रार्थना था, जैसे मैंने शुरू में कहा, और उनके प्रार्थना के बल से हम लोग इस सेवकाई को शुरू करने के लिए हमने कदम रखा। मेरे मम्मी के गुजर जाने के बाद फरवरी 1 तारीख को हमने इस बात को निर्णय लिया कि रस्टीना नौकरी छोड़ेगी, और साथ साथ में मेरे पिताजी और हम लोग बैठ के इस बात को याद किए कि मेरी मम्मी जाने से पहले इस बात को कह के गई थी कि एक चिल्ड्रंस होम शुरू करना है। हमने उस बात को एक विजन के तौर से हमने लिया। हमने हमने ये चाहा कि प्रभु, ये बहुत बड़ी एक चाहत थी हमारे जीवन में कि हम एक बच्चों के बीच में सेवकाई शुरू करें। तो प्रभु ने हमें उस दर्शन में, उस हमारे जो विजन था उसमें प्रभु ने आदर किया। और मई 1 तारीख 2011 मेरी मम्मी के गुजर जाने के 4 महीने बाद, हम इन 4 महीनों में हम लेप्रोसी कॉलोनी जाते रहे, बच्चों को हमने सेलेक्ट किया, और सिलेक्शन के समय में भी हमने देखा कि किसी बच्चों को किसी प्रकार से कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोढ़ की बीमारी अभी इतना नहीं है, क्योंकि वो लोग सब दवाइयाँ खाते हैं, उनको सप्रेशन के जो इस बीमारी को दबाने की दवाई खाते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। हमने अपने आंखों से देखा, जब हम वहां प्रेयर के लिए जाते हैं, लोग वहां दान देने के लिए आते हैं, दूर से देख के चले जाते हैं, लेकिन हम लोग वहां जब प्रेयर मीटिंग के लिए जाते हैं, उनके दिए हुए कुर्सी में हम बैठते हैं, और कई बार वो हमें कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, हम वो भी पीते हैं। और एक चुनौती था हमारे लिए कि कैसे हम करें, लेकिन हमने किया। मेरे पापा तो वहां के प्रधान से हाथ भी मिलाते हैं, शेक हैंड भी करते हैं, उनकी उंगलियां सारी कटी हुई हैं, लेकिन वो जाके उनको शेक हैंड भी करते हैं और जय मसीह की भी बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक चुनौती था हमारे सामने। तो मैंने देखा कि जब मेरे माता पिता कर सकते हैं तो क्यों ना हम कर सके। जब प्रभु ने उन्हें अगुवाई दी है तो प्रभु भी हमें अगुवाई दे रहा है। तो हमने बेझिझक, हमने बगैर कुछ आगे पीछे सोच करके हमने 2011 मई 1 तारीख को 6 लड़कों को हमने उस कॉलोनी से लिया और हमने शुरू किया। प्रभु ने आज तक चलाया है। और जब हम अपने फरीदाबाद में लेके आए, हमने किसी को भी इस बात को नहीं बताया कि ये बच्चे कहाँ से हैं। हमने सबको बोला ये हमारे ही बच्चे हैं। और आज वो बच्चे लोग अच्छे, स्मार्ट और बहुत खूबसूरत दिखने वाले बच्चे हैं। आज 10वीं में और 11वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लोग। पिछले 11 साल खत्म हो चुका, ये 12वां साल है। 12 साल से वो बच्चे हमारे पास हैं। जब वो 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चे थे, तभी हम उनको लेके आए। डर अरविंद तो भैया, था। हाँ। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपने जब बताया कि आपने 22 साल की सेवकाई की है, इस सेवकाई में ऐसे कोई सिचुएशन जहाँ पे आपको बहुत बड़ी निराशा हुई हो, या और निराशा, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको बहुत बड़ी खुशी हुई है, वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे? या निराशा कहूँ तो सेवकाई में हर एक सेवकों के लिए निराशा का समय होता जरूर है। और मेरे जीवन में भी कुछ घटनाएं हमारे जीवन में आई जो कि हमें बहुत तोड़ के रख दिया था कि ऐसा क्यों हुआ हमारे जीवन में। वो इंस्टेंट, अगर मैं एक एग्जाम्पल बोलूं कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको हम बुरे अवस्था में थे, उन्हें हम लेके आए, अपने कलीसिया में रखा, अपने घर पे रखा, उनको हमने सब कुछ किया उनके लिए। हमने अपना टाइम, हमारा पैसा, हमारा एनर्जी, हमने सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में हमें वो बोलते हैं ना कि धोखा देके चले जाते हैं। तो सेवकाई में हमने
मेरे जीवन में पर्सनली मैंने अनुभव किया, मैंने अपने पिताजी के जीवन में भी देखा, उनके आंखों में आंसू भी देखा। मेरे बचपन के समय में मैंने देखा कि कैसे मेरे पिताजी ने कई लोगों को बहुत मदद किया, उन्हें उनके लिए बहुत कुछ किया, बल्कि हमारे को जो चीज मिलना था वो ना देके उनको दे करके उन्हें खड़ा किया। लेकिन वो लोग मेरे पिताजी को बहुत बुरा भला बोल के चले गए। वही चीज हमारे जीवन में भी हुआ 2-3 बार। तो दैट वाज ए ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। वो बहुत बड़ा एक निराशा का समय था और हम बहुत टूट चुके थे उस समय, लेकिन हमें प्रभु ने बल दिया। खुशी का अगर मैं कहूं तो मुझे बड़ी खुशी लगता है। खुशी का समय वो था जब हमारी सेवकाई के द्वारा कई लोग प्रभु में आए, कई लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। दैट इज द ग्रेटेस्ट जॉय। वही सबसे बड़ा एक आनंद का समय था। मैं अगर रिसेंटली का अगर 3-4 साल पहले की बात कहूं, मेरे जीवन में पहला एक्सपीरियंस था कि मैं एक सरदार जी भाई से मिला और उनसे बातचीत करके हम लोग इंट्रोडक्शन किए, फिर उनसे दोस्ती किया, फिर हम उनके घर गए, हमने उनको सुसमाचार सुनाया और उन्होंने उद्धार पाया। और उद्धार पाने के बाद फिर उन्हें वचन से सिखाया, बपतिस्मा लेना है समझाया। तो फिर मैंने उनको बोला कि आपको अपना बाल कटवाना पड़ेगा, ये पगड़ी हटानी पड़ेगी, और उस भाई ने वो किया। और प्रभु की एक एक आज्ञाओं को जब उन्होंने पालन किया, दोनों पति पत्नी ने, हमें हमारे जीवन में सबसे बड़ा एक आनंद का समय था जब ऐसे ऐसे लोग प्रभु में आए हमारे द्वारा, हमारी सेवकाई के द्वारा। तो दैट इज द ग्रेटेस्ट जॉय। वही सबसे बड़ा एक आनंद है कि हम प्रभु में, प्रभु के राज्य में लोगों को हम लेके आए हैं। Wonderful. Thank you so much, Edwin Bhaiya, for talking about the greatest disappointment and also the greatest joy in your life. I think it is time for another song. So let's listen to another song. Edwin Bhaiya, हमारे लिए एक और, can you please sing for us and we'll continue. श्योर। इस गीत का बोल है, जैसे हर गीत का बोल मैं बता रहा हूँ। इस गीत का बोल है, देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे, मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। जब मैं ये गीत गाता हूँ, मेरा आग्रह यह है कि जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, और मेरी इच्छा यह है कि आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु को जानने पाए। ये गीत मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ। मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे, मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे, मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। करता समर्पण में, तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल में।
करता समर्पण में तेरे हाथों में पूरी तौर से मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल में। तेरे लहू से धो दे मुझे, तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे, निर्मल बना तेरी निर्मलता से, चंगा कर दे मुझे पूरी तौर से। तेरे लहू से धो दे मुझे, तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे, निर्मल बना तेरी निर्मलता से, चंगा कर दे मुझे पूरी तौर से। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल में। करता समर्पण में तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल में। भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपनी आत्मा से, मुझको चला अपनी आज्ञाओं से, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपने आत्मा से, मुझको चला अपनी आज्ञाओं से, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एडविन भैया। आपने हमारा इतना समय में अब अपने जो गाने गाए हम लोग सब उस पर एक्चुअली बह गए, टोटली लॉस्ट हो गए। भैया हमारा समय ख़त्म हो चुका है, हम आपसे और भी सुनना चाहते हैं, और भी गाना सुनना चाहते हैं, पर जाने से पहले कुछ शब्द हमारे को एनकरेजमेंट के बता के जाएंगे। जितने भाई बहन लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारे सामने समय बहुत कम है। मैं और आप किस लिए जीवित हैं इस संसार में, इस बात को हम समझे कि प्रभु ने मुझे और आपको क्यों जीवित रखा है, उसके पीछे मकसद क्या है। इस बात को समझते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वें अध्याय
और उसका 4 पद में यीशु मसीह अपने विषय में कह रहा है, और वो किस प्रकार कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वें अध्याय उसका 4 पद, वहां लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन में करना है, अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। एक ऐसा समय आने वाला है कि जब रात आने वाली है, जब कोई काम नहीं कर सकता। प्यारे भाइयों और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक बहुत बड़ी एक सच्चाई कहा है कि दिन में हम काम करें। दिन में हम जो जिम्मेवारी प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि हम जाएं, लोगों को सुसमाचार सुनाएं। जिस प्रकार भाई लोग इस बॉब्स रेडियो के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं, गाने के द्वारा हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मैं और आप इस बात की जिम्मेवारी को समझते हुए हम अपनी दौड़ को पूरा करें। प्यारे भाइयों और बहनों जो मुझे सुन रहे हैं, ये मेरी आपसे एक निवेदन है, एक दरख्वास्त है। वो प्रभु यीशु मसीह जल्द से जल्द आने वाला है, उससे पहले हम उसकी जिम्मेवारियों को पूरा करें, उस प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हम लोगों तक पहुंचाएं। जो नरक में जा रहे हैं, जो अंधकार में जी रहे हैं, उन लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार को हम लोग सुनाएं। प्रभु हमें सहायता करे कि इस दिन में हम काम कर सकें और प्रभु की सेवा हम कर सकें। मेरा मिशन स्टेटमेंट, मेरा एक जीवन का लक्ष्य है कि प्रभु जो तूने आवाज मुझे दी है, उस आवाज, बुलंद आवाज के साथ प्रभु मैं तेरे सुसमाचार को गीतों के द्वारा लोगों तक पहुंचा सकूं। और पिछले 22 साल प्रभु ने मुझे मदद किया है। गीत आज के समय में सब लोग गीत पसंद करते हैं, लोग गीतों को सुनने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, लेकिन गीत गाने से पहले प्रभु यीशु मसीह के विषय में मैं बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को मैं शेयर करता हूँ, उसके बाद गीत गाता हूँ। तो वैसे ही आप और मैं जब इस संसार में प्रभु ने रखा है, उस जिम्मेवारी को पूरा करें, दिन में हम काम को करें। वो रात आने वाली है जब हम में से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी समय है, कितना कठिन परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज चाह रहे हैं कि उनके जीवन में कोई ऐसा एक शांति मिले, उनके जीवन में कोई ऐसी एक सुकून मिल सके, उनके जीवन में उद्धार मिल सके। लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनके पास जाएं, उन्हें सुसमाचार सुनाएं। ये जिम्मेवारी प्रभु ने मुझको और आपको दी है। उस प्रभु के शुभ संदेश को हम लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु हम सबों को सहायता करे। बॉब्स रेडियो के ऑनलाइन क्रिश्चियन रेडियो के द्वारा यही संदेश लोगों दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। वैसे आप लोग भी अपने जिस क्षेत्र में आप हैं, जहां पर भी आप नौकरी कर रहे हैं, जहां पर भी आप बिजनेस करते हैं, वहां पर प्रभु के लिए गवाह हो। परमेश्वर हम सबों को आशीष और बरकत दे। आमीन। Amen. 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 Well, thank you so much, Edwin Bhaiya. We enjoyed it. Thank you so much for being with us today on Bob's Radio. थैंक यू एडविन भैया, थैंक यू फॉर ऑल द Thank you. लिसनर्स। सारे जो भी हमें सुन रहे हैं सबको धन्यवाद। बने रहिए, हर हफ्ते आपके साथ फिर मिलेंगे, नेक्स्ट हफ्ते फिर मिलेंगे और नेक्स्ट गेस्ट के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू Thank you. एवरीवन। Thank you so much. धन्यवाद एडविन भैया, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। सच में हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और आपने हमारे लिए समय को निकाला, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हमारे जितने भी श्रोतागण जो हमें सुन रहे हैं, हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सुन रहे हैं। इसी प्रकार हर सोमवार हमारे साथ बॉब्स रेडियो 21.37 FM में जुड़े रहें, हमें सुनते रहें और आशीषित होते रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, और हम जल्द फिर मिलेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हमारे साथ परमेश्वर की आशीषों का लुत्फ उठाएं। Thank you. And this is time for us to sign out. All of us here in the virtual studio, along with RJ Anuj, RJ Liz, and RJ Singh, and also with our special guest, to all of you out there. Thank you so much for tuning in. We love you for coming with us today. God bless you.
goodbye, good night, and night. God be with you.